Mr. Arjun Kanolkar. We can see the match pre-quarter in progress as we are moving on towards the road to the finals has begun. We can see Veer Brothers Dargar are going to bat first. The courtesy goes to the toss that was won by the captain of Kolwai and elected to field first. They have given an invitation to the batters to give them a target. Let's see up to what extent the team of Veer Brothers Dargar can reach up in this matchup because this is their home ground. This is the one of the host side of this tournament. And when you play on your home ground, surely you have some sort of advantage because you know how the ball behaves. You know how the outfield is going to trick you. What are the secrets of this ground? And surely that advantage was taken in the previous match that was against Ritesh Brothers Ibrahimpurkar. That was a brilliant bowling spell by Shambhunath. And now let's see what can Saurabh and the batter Jairam contribute for their team. And the first bowler will be Prathamesh from the side of Deep Sports Kolwadi. Yes, is the umpires. Praise the call. First ball, Saurabh on strike. First delivery, straight mark shot. His favorite reverse sweep, Ritesh. The fielder stops the ball. As we can see, there are restrictions because it's the mandatory power play over. So only 2 fielders are allowed out of the 30-yard circle. It will be a good opportunity to hit those big shots. Saurabh once again on the striker's end. How sad will be the big appeal towards the umpires. Yes, the wicket keeper was hungry for that wicket. He was confident enough that the ball has nicked the bat, but still the sharp vision of the umpires and even the minor of the details cannot escape their vision. And because of that, the batter was given as not out, so he is safe and secure on the striker's end. Scoreboard is yet to open, but still complimentary work done by Prathamesh. This time trying to go conventional, now in some sort of pressure. He was trying to bowl the slower one and this time he's reducing the pace of the ball and he's successful in that attempt. Prathamesh Govekar, he is beginning the things off beautifully. The perfect execution that was done by the captain. He was given the responsibility of the first over and he is improving in that responsibility so far from the first match. This time ball goes high in the air, no fielder present. Finally the account opening runs. The ball is running and it will keep on rolling until it meets the region outside the boundary line. Finally the batter gets off the mark. The account is individual and teams begins with a boundary. Finally, he gets off the mark with a boundary after a very long moment. Full toss delivery and just see the execution of that shot. He was just waiting for a juicy full toss and his favorite trademark shot. Reverse sweep comes in and it goes for a boundary. Back-to-back boundaries. Scoreboard moves on to 8 runs. This is the beauty of cricket. The first 3 deliveries, a hat-trick of dot deliveries, and now we are almost on the verge of witnessing a hat-trick of boundaries. This is how you start off things. He was in some sort of pressure in the first 3 deliveries. Once again attempting the reverse sweep shot, but yet again unsuccessful. Good situation, a balanced over for both of the sides. 8 runs on the scorecard, no wicket down. A good slow and steady start here. Courtesy of those 2 boundaries that came out from the bat of Saurabh. Hits the end of the first over. Scoreboard moves on to 8. No wicket down. DJ. We are honored to have the presence of ex-Punch member, Mr. Vallabh Varadkar. A very warm welcome from the organizing committee. Taji Shirodkar, Punch member of Dargar, also watching this match really closely of his favoring team, that is the batting side. And now the bowler, let's see. Utkarsh Desai.
Utkarsh Desai, one of the key players of Kolwari, now with the bowling attack. Jairam, very first ball, trouble, chance, and he has to go. The very first ball that he faced, he has to come out in the form of a golden duck. He was trying to cover the cover point region, but instead he finds the wicket keeper. No mistake done behind the stumps. First man gone, a total of 8 runs. So 1 wicket falls down. DJ. It's Sushant Mama, age only just about 45, but still serving his home team, proving that age is just a number. And now he will face his first ball in the whole tournament. Very first delivery, he was trying to hit a pull shot on that. Besides the square leg umpire, he will watch the ball go towards the square leg region, where Krishna, the hero of the previous encounter, all the eyes will be on him. One delivery, 4 runs required and a massive shot. And because of that shot, the team is playing in this match currently. Scoreboard now moves on to 20 runs. Vivek was trying to cut it down the other side and it has been dropped. Vivek is getting the much needed lifeline. The nick of the bat and the ball, the connection, the slight hug of the bat and the ball was heard till the commentary box. There was a chance of sending yet another aggressive batter down to the pavilion. But still the wicket keeper does a mistake, a commitment of a mistake there. Scoreboard with a single moves on to 21. This time it goes over the third man region. The outfield is really quick and all the efforts of the fielder will fail. And because of that brilliantly executed shot, they are going to get a boundary. In each and every over, they are getting boundaries, they are getting sixes, but also they are losing wicket at continuous intervals, which is not a good sign for Dargar. But still, the good thing is that the run rate is keeping on going. It's keeping on sailing. That is the much needed run rate of 8 to 10 runs. Scoreboard now तीन गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर 27 धावा अवघ्या चौथ्या षटकाचा खेळ आणि हा सामना तो निश्चितच 5 षटकांचा आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर यशवंत चौथ्या षटकासाठी वैयक्तिक पहिलं आणि संघाच्या वतीने चौथं षटक घेऊन सुंदर चेंडू ओव्हरपिच चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय. त्यानंतर निर्धाव चेंडूची नोंद होत आहे आणि निश्चितच 5 ओव्हरची मॅच. प्रतिस्पर्धी एक तगडा संघ आहे कोलवळे क्रिकेट संघ. 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 50-55 धावा होणं गरजेचं आहे. ओ यावेळी पुन्हा एकदा एक मिस टाइम फटका. अपील या ठिकाणी पंचांकडे, परंतु अपील फेटाळून लावली गेली. लेग बाईटचा इशारा पंचांकडनं येतोय. अतिरिक्त 1 धावी धावफलकावर आणि सांघिक धावफलक एका धावेने शिवाधारतोय. 28 धावा. या मॅच मधील विजेता जो येणाऱ्या काळात सोनी 11 पारसेम क्रिकेट संघ बरोबर खेळ. पुन्हा एकदा यशवंत सज्ज होता.
ओव्हर पिच चेंडू डीप मिड विकेटला फटका खेळला, क्षेत्ररक्षक आहे. बॅकअप जोपर्यंत दिला जाईल दुसरा धावेचा प्रयत्न होतोय, नाकारलं जातोय. मात्र एकच धाव, धावफल कव्हर. कैशी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतो, ज्या ठिकाणी दुसरी धाव देखील सहज रीतीने झाली असती, परंतु मात्र एका सिंगल धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय. सांघिक धावफलक वधारतोय जो 30-29 धावांपर्यंत. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा. ओ यावेळी एक सुरेख फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, घणाघाती फटका. षटकार सीताराम उर्फ पांडू याच्या बॅट मधून निघतोय हा षटकार. सहा धावांची धावफलक वधारतोय तब्बल 35 धावा. पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. हो यावेळी फटका फसलाय, शॉटला क्षेत्ररक्षक आहे जोवर बॅकअप दिला जाईल. पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज एका धावेवर समाधान मानतात आणि दरम्यान 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त. धावफलकावर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. संपूर्ण स्पर्धा जी आपण युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतोय, tenniscricket.in च्या माध्यमातून सन्माननीय गिरीश कोसरेकर यांच्या माध्यमातून त्यांची टीम या ठिकाणी उपस्थित आणि त्यांचे कॅमेरामॅन या ठिकाणी सर्वेश, त्याचबरोबर सन्माननीय सफवान हे दोन्ही उपस्थित आहेत. आणि अखिल गिरीश कोसरेकर हे उत्कृष्ट खेळाडू देखील आहेत आणि त्यांची टीम या ठिकाणी tenniscricket.in च्या माध्यमातून पाहतोय. आणि संपूर्ण स्पर्धा जे युट्यूबच्या माध्यमातून प्रेक्षक लाईव्ह जोडले जातात, त्याचबरोबर मैदानावरती उपस्थित असलेले प्रेक्षक सर्वांचं पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रात मनपूर्वक स्वागत. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. धावफलकावर होत आहेत तब्बल 36 धावा धावफलकावर होत आहेत 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. पंचांची त्रिमूर्ती रुपेश गवसर उर्फ भालो, त्याचबरोबर स्क्वेअर लेग पंच आनंद माजरेकर, त्याचबरोबर आत्माराम चंद्रजी उर्फ आपी, पंचांची त्रिमूर्ती जोडी. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये माझ्यासोबत दीप आरुंदेकर. स्कोरिंग काउंटिंगची जानकारी देण्यासाठी कॉम्प्युटर स्कोरर या नावाने संबोधन अखिलजी परब आणि मी सावराम शिरोडकर पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतोय. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 36 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5व्या षटकासाठी कृष्णा पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. खालच्या पट्टीतील चेंडू बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क झाला नाही. एका निर्धाव चेंडूची नोंद ही केली जाते. मागच्या मॅचचा हिरो कृष्णा नाईक, ज्याने एका षटकात फक्त 2 धावा खर्ची केल्या होत्या आणि फलंदाजीत अगदी बहारदार खेळी. 22 धावांची खेळी ज्याने केली तो कृष्णा. यावेळी पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त 1 धाव धावफलकावर व्हाईट बॉलच्या रूपात आणि सांघिक धावफलक हा वधारतो तब्बल 37 धावा धावफलकावर. 5वं षटक 37 धावा. जवळजवळ 3 गडी जे आघाडीचे बाद झाले दारगड संघाचे. ओ यावेळी एक मिस टाइम फटका. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु क्षेत्ररक्षक सावरतोय स्वतःला. एक सिंगल धाव. शॉर्ट कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक चेंडूला बॅकअप देतोय, तेवढ्यात एक सिंगल धाव धावफलकावर आणि एका धावेनेशी धावफलक पुन्हा एकदा वधारतोय. सिंगल डबल वर भर दिली जाते. आघाडीचे फलंदाज जे स्वस्तामध्ये बाद झालेत, त्यानंतर 5व्या स्थानी आलेला फलंदाज ज्याच्या सीतारामच्या बॅटमधून एक षटकार आणि समोरनं सुशांत हा स्ट्राईकला सज्ज झालाय शेवटच्या षटकासाठी. अंतरिम षटक हे प्रगतीपथावर. अकोटा चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने फटका. डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक जोवर बॅकअप देईल तेवढ्यात पुन्हा एकदा 2 धावा धावफलकावर. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा 2 धावेने धावफलक 40 धावांपर्यंत मसूल मारतोय. मॅच मध्ये 50-55 धाव फायटिंग टोटल. अजूनही एका दुसरा शॉट कमी पडतोय या मॅच मध्ये. येणाऱ्या कालखंडात 3 चेंडू, एका दुसरा शॉट बाकी आहे या षटकात. एक मोठा फटका डाऊन द ग्राउंड. डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने वन बाउंस सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. सुशांतच्या बॅटमधनं हा चौकार. एक धावफलक 44 धावा. अजूनही 2 चेंडू चे अंतरिम षटकातील बाकी. धावफलकावर 44 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुशांत उर्फ मामा या नावाने परिचित. बॅटची बाहेर काढ. थर्डमॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाचे शर्तीचे प्रयत्न. डीप थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक जातोय, तेवढ्यात या ठिकाणी चौकार. एकूणच इनिंग दरम्यान सुशांत याच्या बॅटमधनं हा 3रा चौकार.
इनिंग दरम्यान नेमका शेवटचा चेंडू आणि धावफलकावर 48 धावा. कृष्णा याच्या विरुद्ध 2 मोठे फटके चौकार नोंदवले गेले. यावेळी पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. चेंडू रोलिंग होतोय. शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक अर्जुन बहुधा चेंडूची उचल करेल. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न हा देखील मैदानामध्ये केला जातोय. 3 धावा जरी झाल्या तरी त्यानंतर 1 शॉटचा इशारा पंचांकडनं आणि निश्चितच 2 धावा म्हणजे 50 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्या. टार्गेट 51 धावांचं ठेवलं जात आहे. 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये टार्गेट 51 धावांचं. धावफलकामध्ये धावांचा पाठलाग करताना प्रति षटकामागे 10 धावांची सरासरी राखणं गरजेचं. सामन्या दरम्यान जो संघ बाजी मारेल तो येणाऱ्या काळात सोनी इलेव्हन पारसेम संघासोबत आपला पुढचा सामना खेळ. परंतु बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय. पुढच्या काही षटकांसाठी पुन्हा एकदा आमचे साथीदार दीप आरुंदेकर हे आपल्या समोर जोडले जात आहेत. 30 चेंडू आणि 51 धावांचं टार्गेट. राजेश सामना करेंगे इस पूरी प्रतियोगिता में अपनी जो कि यहाँ पर पहली गेंद. पहले मैच में नहीं थे लेकिन इस बार खेलने के लिए तैयार. पहली गेंद इनोवेटिव शॉट रिवर्स अटेम्प्ट. हाउजर अंपायर की एक जोरदार अपील लेकिन उस शॉट में उतनी यहाँ पर ताकत थी नहीं और अगर इंपैक्ट भी अगर देखा जाए तो स्टंप्स को छोड़ने वाली ये गेंद थी. लेकिन पहली गेंद बिल्कुल बखूबी अगर ये गेंद एक राइट हैंडेड बल्लेबाज खेले तो बिल्कुल यहाँ पर ये गेंद सीधा यॉर्क पर जाकर गिरती. एक बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत.
इस बार फिर एक बार वही लाइन वही लेंथ, लेकिन इस बार रिवर्स स्वीप ना खेलते हुए इस बार सीधे बल्ले से गेंद को मोड़ा, इस बार ऑफ साइड पर जहां पर फील्डर है तैनात मिड ऑफ के क्षेत्र में, तब तक मिलेगा यहाँ पर सिर्फ एक रन। अगर देखा जाए तो पहला जो कि ये ओवर है कंपलसरी पावर प्ले का, आपके पास प्रतिबंध रहेंगे मात्र 2 खिलाड़ियों के 38 सर्कल के बाहर, और उसी का इस्तेमाल करने का प्रयास इसी बीच। रिवर्स स्वीप अटेम्प्टेड, फील्डर मौजूद है वहां पर, पॉइंट में उसे किया है बीट, विवेक आएंगे डीप में से, एक रन बनेगा और एक रन से ही संतुष्टि। यहां पर 50 रन की बात की जाए तो 51 रन का टारगेट है, इसका मतलब आपको हर ओवर में 10 का औसत जारी रखना है अगर इस मैच में जीत हासिल करनी है तो। नॉकआउट की ये टूर्नामेंट, हर मैच जीतो, उसी के साथ एक कदम आगे बढ़ाइए, और वही कदम कौन सी टीम बढ़ाएगी ये बिल्कुल आने वाली 4 ओवर्स इन सभी सवालों के जवाब देंगे। ये लोअर फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद थी नीचे खिलाड़ी, और यहां पर अगर खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद गई आउटफील्ड, यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी गेंद को बाहर भेजने के लिए। एक बाउंड्री निकलती हुई यहां पर बल्ले से राजेश के स्कोरबोर्ड बनता हुआ 6 रन, कोई विकेट नहीं। डीजे इस हवा में एक तेरी तो एक मेरी, बदला लेते हुए इस बार क्या होता है हशर बाउंड्री लगाने का। अगली ही गेंद पर यह साबित कर दिया, एक बाउंड्री के बाद दूसरी गेंद पर विकेट, इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं रिवेंज सक्सेसफुली टेकन। वापिस जाएंगे राजेश रिवर्स स्वीप के अटेम्प्ट में, अब हो चुके हैं आउट, स्कोरबोर्ड बन चुका है मात्र 6 रन, अब एक विकेट के नुकसान पर। डीजे न्यू बैटर, पहली गेंद हाउसर और सीधा स्टंप्स के सामने पाए गए, और अंपायर के मन में कोई यहां पर शंका नहीं थी, कोई भी आसार नहीं थे बैटर के बचने के, और इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा। एक बाउंड्री लगी थी, क्या यहां पर थी कोल वाले ड्राइवर सीट पर? जी नहीं, यहां पर किया है कमबैक जयराम ने, 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक विकेट, स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ मात्र 6 रनों पर। इस बार जो कि 2 विकेट के नुकसान पर गोल्डन डक के स्वरूप में जिन कदमों से गए थे उन्हीं कदमों में से आएंगे वापस प्रथमेश बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद पर वापस भेजा। अगर इस टीम की बात की जाए, बैटिंग तो है ही, लेकिन बैटिंग से भी 2 गुना ज्यादा ताकत है इस टीम की बॉलिंग लाइनअप में। और वो ताकत कितनी है, उस ताकत का जो कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेलर पेश किया था जयराम ने, पूरी पिक्चर शंभुनाथ दिखाएंगे। पिछली मैच में 2 ओवर्स डाली थी, इसका मतलब 12 गेंदें डाली, सिर्फ 2 रन दिए थे, हर ओवर में 1 रन, उसी के साथ एक क्रूशियल विकेट भी। सोनी 11 पारसेम की टीम राह देख रही अपने प्रतिद्वंद्वी का, कौन सी टीम इनके सामने रहेगी? क्या वो रहेगी एक ओर से दीप स्पोर्ट्स कोलवाड़ी, या फिर रहेगी होस्ट साइड वीर ब्रदर्स धारगढ़? दूसरा ओवर लेकर आएंगे टीम के एक और स्ट्राइक गेंदबाज शंभुनाथ कारापुरकर अपने बॉलिंग मार्क पर।
रितेश इस बार पहली गेंद पर गेंद थी स्लॉट में और भेजा है इस गेंद को प्लॉट में। स्वागत किया है शंभू का एक बड़े शॉट के साथ। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हो इसी के साथ 12 रन। अब फाइनली मोमेंटम वापस प्राप्त करते हुए, बिल्कुल यही तो क्रिकेट का मजा है। पिछली मैच मायने नहीं रखती, पिछली मैच कितनी भी अच्छी हो या फिर कितनी भी बुरी जाए, नया मैच जो कि नए सिरे से स्टार्ट करना होता है। इस बार नए सिरे से स्टार्ट किया बैटर ने। रितेश ने फिर एक बार, इस बार फास्टर वन। ये गेंद पिछले वाली से ज्यादा ही तेज डाली थी, बिल्कुल कमबैक करते हुए। लेकिन यहां पर तारीफ करूंगा रितेश की, 2 विकेट्स जल्दी बिल्कुल सस्ते में वापस जाते हुए। लेकिन फिर भी यहां पर टीम के जिम्मेदारी यहां पर उठाई अपने कंधों पर। और जो पहली खराब गेंद थी स्लॉट में, उसे लॉन्ग ऑन के बाहर से भेजा था, लेकिन एक डॉट गेंद के साथ वापस कमबैक करते हुए शंभू। बड़ा शॉट निकालने की कोशिश, यहां पर गेंद गिरी है नो मैंस लैंड में। 1 रन तो बनेगा। और ये दौड़ देखिए, कितना बड़ा अंतर कम से कम समय में यहां पर पार किया। विवेक एक बिल्कुल बढ़िया फुटबॉल के खिलाड़ी भी है और यहां पर फुटबॉल खेलने का अनुभव क्रिकेट के मैदान में यहां पर काम आते हुए। स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा 13 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। सिंगल डबल भी लीजिए, इसी का मतलब आप मैच में कदम से कदम यहां पर चलाएंगे टारगेट के साथ। और ये इस बार जो कि फेमस हुआ है ये शॉट, सुपला शॉट इस नाम से। बिल्कुल अगर देखा जाए तो रैंप और स्कूप शॉट का एक मिलन इस शॉट में हम देख सकते हैं। अगर रैंप शॉट की बात की है तो जॉस बटलर ये शॉट उमन खेलते हैं, और अगर स्कूप की बात की जाए तो दिलशान स्कूप हमने सभी देखा है। तो इन दोनों ही शॉट्स का मिलन, मतलब ये सुपला शॉट। वो शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन उस गेंद पर मिली है डॉट गेंद। इस बार ऑफ साइड पर गेंद जा चुके विकेटों के पीछे। मामा ये फुर्ती देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन यहां पर खराब थ्रो, जो मोमेंटम था। और फिर एक बार यहां पर स्पीड देखिए, सभी फील्डर्स की स्पीड मायने नहीं रखती, आपको बैकअप अच्छा देना पड़ेगा तभी ये मैच बनेगा। मामा देखिए कहां पर थे और कहां तक चले गए दौड़ते दौड़ते। उनका जो कि अगर देखा जाए तो उनकी उम्र है 48 साल, लेकिन 48 साल पर भी यहां पर क्या फुर्तीला मिजाज इनका। 20 रन बल्ले से। और अब फील्डिंग के साथ स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ इसी के साथ 15 रन स्कोरबोर्ड पर। 19 गेंदे और 36 रन जीत से पीछे शंभुनाथ। बिल्कुल ये बढ़िया बॉलिंग इसी बीच। इस बार बड़ा शॉट निकला है, फील्डर मौजूद है थोड़ा सा दूर वहां पर, और गेंद क्या बीट करेगी जी नहीं। बिल्कुल बढ़िया फील्ड वहां पर सीताराम एके पांडु की ओर से। ये बिल्कुल एक बड़ा शॉट रोका है, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इसी के साथ ये ओवर तो समाप्त। शंभुनाथ इस बार थोड़े से महंगे साबित होते हुए, थैंक्स टू द बिग शॉट। एक बड़ा शॉट जो कि निकला था बल्ले से रितेश के, उनके शॉट की वजह से इस ओवर में आए कुल 11 रन, और स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ कुल 17 रन स्कोरबोर्ड पर। 18 गेंदे जीत से पीछे है 34 रन इस मैच में। 18 गेंदे 34 रन। आप देख रहे हैं कारवा सरपंच चषक 2024, द फर्स्ट एडिशन इस सीजन का। 1 लाख कौन सी टीम अपने साथ अपने घर पर ले जाएगी, कौन सी टीम इस बड़े ट्रॉफी को अपने साथ लेकर जाएगी अपने गांव में, ये सभी सवाल, ये सही जवाब हमें मिलेंगे आखिरी दिन में। तो जिस प्रकार से आप जुड़े हैं हमारे साथ सुबह के सत्र से, सभी दर्शकों से ये निवेदन, आखिरी समय तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। आपका आशीर्वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरी प्रतियोगिता में। बहुत से यहाँ पर स्पॉन्सर्स ने भी अपना आशीर्वाद दिया है इस प्रतियोगिता को, जिनकी वजह से आज ये प्रतियोगिता बिल्कुल अपने आखिरी पायदान तक पहुंच चुकी है। पहला दिन, ये जो सपना देखा था यहाँ पर दाड़ेश्वर स्पोर्ट्स क्लब ने, वो सपना आखिरकार अब जो कि सच होता हुआ।
एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने का और आखिरकार ये प्रतियोगिता का आज का ये पहला दिन। 18 गेंदें बची है इस मैच में और जीत से पीछे है 34 रन। गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज निशाल कोनाडकर। रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट, यहां पर इनोवेटिव शॉट्स का बार बार प्रयास हो रहा है। अगर देखा जाए तो रितेश रिवर्स स्वीप के प्रयास में और दूसरी ओर सुपुला शॉट के प्रयास में थे अमन कामड़ी। दरमियान गेंद निकली डॉट। यहां पर आप समय पर भी ध्यान दे तो बिल्कुल यहां पर ये अच्छी बात रहेगी। इस बार गेंद गई है विकेटों के पीछे। गेंद थोड़ी सी कम गति से प्रदीप जाते हुए और जब तक गेंद को करेंगे फील्ड वहां पर तब तक मिलेंगे यहां पर 2 रन। 38 सर्कल को क्रॉस किया था, बिल्कुल यहां पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पास जा रही थी लेकिन आउटफील्ड ने उतना साथ नहीं दिया उस गेंद का, इसलिए 38 सर्कल के बाहर शॉर्ट लेग पर गेंद रोकी गई और स्कोरबोर्ड जो कि बना इसी के साथ कुल यहां पर 19 रन। सोलह गेंदे 32 रन। रिवर्स अटेम्प्ट, बार बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास यहां पर, ये शायद से इनका फेवरेट शॉट है और जब जब खिलाड़ी एक शॉट की प्रैक्टिस करते हैं उस शॉट में सेट होते हैं तो बिल्कुल ये शॉट देखने लायक होता है। लेकिन इस बार डॉट गेंद निकलती हुई, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश इस बार। डॉट गेंद माफ कीजिए डॉ वाइड का यहां पर इशारा किया है अंपायर की ओर से। आखिरी समय में अंपायर ने यहां पर दोनों हाथ खोले। इसी बीच स्कोरबोर्ड जो कि बना 20 रन, 31 रन जीत से पीछे। ऑफसाइड पर कट करने का प्रयास किया था। ये डॉट गेंदे महंगी पड़ेंगी, ये डॉट गेंदे महंगी पड़ेंगी। अगर आपको ये मैच जीतना है तो डॉट गेंदे नहीं जाने देनी है। सिंगल डबल आए तो भी चलेगा लेकिन डॉट नहीं देनी है। इक्वेशन बदलेगा। 14 गेंदे जीत से पीछे, 31 रन। 14 गेंदे और 31 रन। अब तक तो ये ओवर बिल्कुल बढ़िया घट्टा हुआ धारगढ़ टीम के लिए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश यहां पर बांध के रखा है, जो सिर्फ एक शॉट निकला है इस इनिंग का और जिस बल्लेबाज ने वो शॉट लगाया था उस बल्लेबाज को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है। 13 गेंदे और जीत से पीछे कुल रहेंगे 30 रन इस मैच में। अमन कामड़ी अब जो कि सामना करेंगे आने वाले जो कि आखिरी गेंद का। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार शॉट फंसा है, मिस टाइम है, ये नीचे नहीं, मिस टाइम नहीं, इसे कहते हैं विंड एडवांटेज। लक फेवर्स द ब्रेव। हिम्मत दिखाई यहां पर एक बड़ा शॉट लगाने की, नसीब का साथ। नसीब से भी बढ़िया मैं कहूंगा, बिल्कुल यहां पर साथ दिया हवा के रुख ने। और इसी के साथ जो कि स्कोर बोर्ड बनता हुआ इसी के साथ 27 रन और जीत से पीछे आने वाली 12 गेंदे और 24 रन। तो क्या घटेगा आने वाली 12 गेंदों पर? क्या 24 रन डिफेंड हो पाएंगे या फिर ये रन चेज हो पाएंगे? बिल्कुल आने वाले समय में सुनते हैं मराठी आवाज सौराम शिरोडकर का। धन्यवाद। महत्वपूर्ण 12 चेंडू बाकी उरलेत विजयासाठी 24 धावा करायच्यात, म्हणजे निर्धारित 4 षटकार टोलवणं हे कोलवाडी क्रिकेट संघाला बाकी असेल। समोरनं 51 धावांचं टार्गेट आणि त्याला रोख लावण्यासाठी गोलंदाजीत बघूया कशा रीतीने कमबॅक केलं जाईल। समोरनं सीताराम उर्फ पांडू गोलंदाजी मार्कवर 12 तोवर भाकीत लावणं, अंदाज लावणं हे काहीच चुकीचं असेल। सीमारक्षक डीप स्क्वेअर लेग ऑन स्ट्रेट मिड विकेट, वाईडिश लॉंग ऑन ऑफ साइडला लॉंग ऑफ 5 सीमारक्षक आणि पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट सीताराम। ओ यावेळी अकोटा पद्धत चेंडू गुड लेंड स्पॉटवर पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स विकेटच्या मागे सौरभ आपली कामगिरी बजावतोय। एक निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त। एका निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त होत आहे। धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय।
ओ यावेळी शफल होतोय ऑफ साइडला ऑन साइडला अलंग कार्पेट फटका टोलवला डीप स्क्वेअर लेगला विवेक उर्फ बाकार्डी हा काहीसा बीड होतोय डीप स्क्वेअर लेग वर विकेट किपरच्या दिशेने फेके काहीशी मिस फिल्डिंग या ठिकाणी बघायला मिळते त्यानंतर 2 धावांमध्ये रूपांतर हे दोन्ही फलंदाजाकडनं केलं गेलं 2 धावांची धावफलक पुन्हा एकदा 36 रन स्कोरबोर्ड 36 धावा धावफलकावर आता मात्र यानंतर करायचे असतील 15 धावा परंतु समोर मात्र 8 चेंडू हे बाकी उरलेत कोलवाई क्रिकेट संघासाठी ओ यावेळी एक मिस टाइम फटका शॉर्ट कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक ओ हो झेल सुटला आज लक फॅक्टर पूर्णपणे असेल कोलवाई क्रिकेट संघासाठी विराज याच्याकडनं झेल सुटतोय एक सिंगल आणि धावफलक पुन्हा एकदा वधारतो 37 धावा धावफलकावर पहिल्या सामन्यामध्ये 3 झेल जे कृष्णाचे सोडले गेले त्यानंतर त्याने मॅन ऑफ द मॅच पटकावला तर या मॅच मध्ये बघूया काय घडतंय ओ खोलवर टप्प्याचा चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेने शंभूनाथ हो दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट गुड रनिंग बिटवीन द विकेट 2 धावा तिसरा धावेचा प्रयत्न हा देखील होताना दिसतोय ज्या ठिकाणी फक्त पहिली धाव त्या ठिकाणी मिसफिल्डच्या जोरावर दुसरी धाव आणि बॅकअप नसल्या कारणामुळे तिसरी धाव 3 धावा 3 धावेनिशी धावफलक 40 धावा शेवटचे 6 चेंडू बाकी आणि 6 चेंडू मध्ये 11 धावा 6 चेंडू 11 धावा आणि स्ट्राईक वर कोण असेल ज्याने 2 दर्जेदार षटकार टोलवले मॅच मध्ये तो रितेश असे स्ट्राईकच्या दिशेने 6 चेंडू 11 धावा विजयासाठी ओ पुलर लेनचा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा एक देखणा फटका कव्हर स्वीपर कव्हरच्या दिशेने चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार 5 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावा करायच्या आहेत या अगोदरचा चेंडू ज्यावर एक धाव होती दुसरी धाव झाली आणि बॅकअप नसल्या कारणामुळे तिसरी धाव आणि त्या तिसऱ्या धावेच्या मोबदल्यात जो रितेश बहरलेली फलंदाजीसाठी नावाजला जातो तो रितेश आता मात्र स्ट्राईकच्या दिशेने 5 चेंडू 7 धावा विजयाचं समीकरण क्षेत्ररक्षणाची काहीशी केलेली पडताळणी पुन्हा एकदा सज्ज ओव्हर द विकेट ओ यावेळी पुन्हा एकदा अल्टीपल्टीचा प्रयत्न निर्धाव चेंडू रिव्हर्सिपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फटका फसला एक निर्धाव चेंडू आता मात्र 4 चेंडू 7 धावा विजयाचं समीकरण या क्षणी फलंदाजाने नेमकं करावं तर काय एकतर मोठा फटका किंवा सिंगल डबल पुलर लेनचा चेंडू पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंग अपला 2 मॅच लँड मध्ये गॅप मध्ये फटका खेळलाय वाईडिश लॉंग अपला चेंडू जातोय चौकारांशी पुन्हा एकदा धावफलक वधारतोय धावफलक 48 धावा आता मात्र 3 धावा करायच्या असतील 3 चेंडू 3 धावा विजयाचं समीकरण प्रत्येक चेंडू मागे किमान 1 धाव घ्यावी लागेल कोलवाडी क्रिकेट संघाचा या अगोदरचा सामना जो शेवटच्या चेंडू पर्यंत रंगला आणि या मॅच मध्ये बघूया काय घडतंय मॅच मधील विजेता संघ जो सोनी 11 पारसिम संघ बरोबर आपला पुढचा सामना खेळेल खोलवर टप्प्यावर चेंडू डाऊन द ग्राउंड फटका क्षेत्ररक्षक आहे काहीस मिसप्लेल पुन्हा एकदा जयराम याच्याकडनं 2 धावा पूर्ण होत आहेत आता मात्र एका धावेची गरज आहे रितेश जो 30 धावांची नाबाद खेळी करतो आतापर्यंत या मॅच मध्ये स्कोर लेवल झालाय मात्र एका धावेची गरज असेल विजयासाठी ओ फ्रंट फुटवर जाऊन ही धाव या ठिकाणी घेतली जाते आणि विजयी धाव या ठिकाणी असेल कोलवाळे क्रिकेट संघासाठी सामन्या दरम्यान कोलवाळे संघ हा मॅच मध्ये या ठिकाणी बाजी मारतोय आपली विजयी घोडदौड या ठिकाणी कायम ठेवतोय आणि दुसऱ्या बाजूने
धारगड क्रिकेट संघाला सामन्या दरम्यान पराभूत केलं जात आहे.